guys, before we get into anything, I just really first wanted to talk about Palestine and the situation in Palestine. We already know the situation there is very, very worse. We cannot even imagine what is happening over there. So make sure we are praying for them every day, every time, for their protection, for a life full of peace, for their liberation, for their freedom. If you guys can donate, I would really encourage to donate in charities that are supporting Palestinians or are in Palestine or directly related to Palestine. Secondly, I want you guys to first of all educate yourself about the current situation. We need to know the core of this problem and how it started, and why are people over there suffering so much. We need to know every single thing. And then I want you guys to share it on your social media so that your friends could know, so everyone else could know, so everyone else could know how serious this is. The least we can do is that we can educate ourselves on what is happening over there and how it all started and the daily updates. And also we can share it as much as we can with our friends and family, with our parents, with our siblings, with our friends, and the people who are in our community, so that they could know about it too. And we need to raise our voices on social media especially. It really works. You think कि आपकी आवाज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोलूँ ना बोलूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है. पिछले साल 2021 में जब the whole thing started, तो it was the social media pressure that they were scared and they proposed a ceasefire. Obviously, we see America putting out these false statements, American news channels or all Western media basically putting out so much false information regarding Palestine, and it is very important for us to get educated so that we could not fall on that, and we should know where we stand, what's our stance, and why is it that we should know what it is and why it is and why we support that, so that even if we are having an argument with someone, so we can give our strong stance on it. So it's very, very, very important to educate, to support, to raise our voice against it. Your voice matters. It really does matters. Hi guys, this is Avyata here and you are listening to the Brown Girl Rants. It's a very lovely day over here. पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी and it was so cold that I actually have to pull out my winter clothes on. Or it was, and I posted on my Instagram, and it became a very hot topic among people. Oh my god, Ravia ne sardiyon ke kapde nikal liye. Oh my god, Ravia ne sardiyon ke kapde nikal liye. My poopa called my mom and said, Ravia ne sardiyon ke kapde nikal liye. It was so funny. लेकिन the thing with me is that कि मुझे बहुत जल्दी ठंड लगना शुरू हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. I do enjoy winter, but I cannot enjoy winter when I am cold. Like we went out that other night and it started raining. It was late night. It started raining. It was fun, but also I was getting so much cold that I could not enjoy it. So I could not enjoy cold until or unless I'm not fully covered and protected. Matlab, I would love to feel a little bit cold and chilly, but I do not want, like, I also enjoy being warm in the winters. So मैंने socks पहनना start कर दिया. My socks are on. My sweatshirt is on. Also, I am wearing a thick layer of moisturizer on my face and my lips are chapped. I have started using a lip balm. पता नहीं मैं गर्मी में क्यों नहीं lip balm use करती. वैसे I should practice using a lip balm in summers too. लेकिन so इस वजह से I just feel really warm and love it. I got a haircut last week and I think I told in the previous episode that I'm gonna get a haircut, or I did. उसके अलावा I said that I'm gonna go to the Eras tour, but that couldn't happen. Probably I'll go this week, this Friday, but I am not sure. क्योंकि जिनके साथ मैंने जाना था, I do not know what happens. Also, the cinema is very far away from my home, so I'm a bit skeptical about that. Like, and I want to go because I see people enjoying and I want to enjoy it too. So maybe I'll go. I don't know. My friend is getting engaged at the end of this month, which is obviously a very happy thing, or I'm so excited for her.
this other friend of mine is getting married in December. So here's a lot of friends wedding going on. I always complaining कि यार मेरी दोस्त की किसी शादी नहीं होती, दोस्त की किसी शादी नहीं होती, और अब एकदम से there's just so much happening and it's so overwhelming. And for me, whenever my friend tells me कि oh I'm getting engaged या फिर मेरी बात पक्की होगी, I'm gonna get married, तो I just get so emotional कि हमारी ये उम्र आ गई है. Are we this old that now we'll start getting married? So I personally cannot accept that. For me, I'm too young to get married. So इस वजह से it's always so emotional for me to see my friends getting married or preparing for their marriage or getting engaged or getting like वो सब कुछ. लेकिन I'm also very happy for them because mashallah both of them are really happy. The friend of mine who's gonna get married in December, I also want to do a dholki for her in my home. और उसके लिए मैंने कुछ plan नहीं किया. So I don't know कि how is that gonna happen. If anyone have any tips, क्योंकि I don't know, मुझे लगता है कि सिर्फ ढोलकी won't be that boring. I should add some games and stuff. लेकिन I don't know what games should I add. Also I don't know कि arrangements वगैरह वो सब कुछ. I literally have not even a single thing else than a single strip of LED lights, और मुझे नहीं पता कि उससे मैं पूरे कैसे arrangement कर सकती हूँ. So I do not have anything, लेकिन I want to do it, or I don't know how I'm gonna pull that out. Like, and I want to do it and I need to start planning. This makes me realize that I need to start planning. So if anyone have any idea कि कैसे करनी चाहिए, please let me know. I am in dire need of help. और क्या हो रहा है? There's just so much मतलब even with the weddings and stuff, like even her engagement is at the end of the month. लेकिन मैं अभी से I am like stressed out about it. कैसे जाना है, क्या पहनना है, मेकअप कैसे करना है, गिफ्ट क्या देना है, क्या करना है. और ऑल्सो आई एम इन दिस एज कि आई डू नॉट रियलाइज कि should I give them like cash or should I give them money? What should I give them? What amount is nice, decent amount? और वो सब कुछ है. तो इस वजह से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. और क्योंकि obviously I have always attended weddings as a child, क्योंकि मतलब I was always invited to weddings because of my parents, because my parents had some sort of relationship with that person. So I always attended as the children of my parents. Like, this is like the first time that I'm being invited for my direct relation, and no one else from my home is going. So I don't know how to do stuff like that, even though I'm 23. And I think people who are 23 have experience with that. Like, and I still think that we are too young to get married. Like, and I'm so happy for them. Like, I am really happy for them, and I hope that everything goes smoothly for them. I'm very excited. Or what else I wanted to talk about? I wanted to talk about something. लेकिन मैं ना भूल जाती हूँ. Oh my god. I wanted to announce that this is the first time in the 39 or in the 40 episodes of the Brown Girl Rants. We completed 40 episodes, by the way, which is amazing. Or I never thought, starting this podcast, I never thought that I'll be able to reach 40 episodes. Like, and we are. And by the end of the year, we'll complete 50 episodes. Or जब next year का starting week होगा, तो उसमें मेरी podcast की 1 year anniversary भी है. So it's so cool. I don't have anything special planned for that. लेकिन it's cool. It's cool. It's fun. अच्छा, तो the thing is that मैं for the first time in 40 years I am recording this podcast on my mobile phone, क्योंकि I think my mobile's microphone is pretty good. और मैंने कहा कि oh my god, let me try recording on that. Obviously I do miss recording on laptop because it feels more proper, it feels more put together, it feels like I am very professional recording on a laptop with a mic and a recording software. लेकिन I realized कि मेरे मोबाइल का कैमरा मेरे मोबाइल का microphone might be better from the mic I am using. This one is I'm recording on my mobile phone. I want you guys to tell me कि if there's any difference, did you feel better, did you feel worse, ताकि मैं फिर करूँ आइंदा कि ना करूँ. So yeah, that's it. I think that was enough for the intro. But we move to our topic for today. और उसके बारे में I'll explain कि what's the topic and what was my inspiration for the topic. और
I am really excited for today's topic. This topic is something that is really close to my heart. I don't think I have talked about it earlier. I was actually, if you guys follow me on Instagram, which you guys should obviously, लेकिन मैं अपने Instagram पे वो जो मैंने इस पॉडकास्ट में बोलना है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बोलने लगी थी, लेकिन मैंने कहा रबी वेट, दिस कुड बी अ पॉडकास्ट एपिसोड, दिस कुड बी अ पोटेंशियल पॉडकास्ट एपिसोड. उसके बाद मैं फिर उसका टाइटल सोच रही थी. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू थिंक ऑफ अ टाइटल फॉर मी. और उसके बाद तो आई टेक्स्टेड इन माई स्कूल फ्रेंड ग्रुप के दिस इज द एपिसोड अबाउट, प्लीज सजेस्ट मी अ टाइटल. दे सजेस्टेड. आई would obviously मुझे लगता है कि some people would be like just write a prompt and ChatGPT would suggest you a title. For me, AI is very scary. I never used AI and I do not plan to use AI. I think AI should be banned. I think it's very scary and it's taking away the creativity, the little creativity we have. तो इस वजह से obviously, और I am not a student anymore, मुझे AI की ज़रूरत भी नहीं है और मैं अपनी क्रिएटिव चीज़ें खुद करना चाहती हूँ. तो इस वजह से I hate AI. I am anti-AI or I think it should be banned. It shouldn't be on internet. लेकिन तो I really am happy to make an episode on this topic and I really wanted to. I am not happy, लेकिन I am very excited to talk about this topic. लेकिन while I was talking to you guys and while I was telling कि ये उस टाइम पे लाइट चली गई है. Now I have a flashlight in my hand and I am looking at my notes, लेकिन it's not the most convenient thing ever. So maybe I'll wait for the light and then come and record the main topic of the episode. But also I don't want to wait, so I don't know what to do. Like, anyways, you guys will hear me in the next clip. So it's an hour later. क्योंकि I decided कि light आएगी तभी करूँगी. It's inconvenient कि मैं flashlight लेके बैठी हुई हूँ and I'm seeing what I'm supposed to say. So this episode is about sharing our feeling with other people. Not romantic feeling, the feeling where we feel hurt from someone or we are sad over someone. I think most of the time, yeah, all of the time we are hurt or we are disturbed is because there's some other human involved that did something that hurted us. We would never, it's never possible, right, कि हम अकेले हैं and we'll get hurt. We always get hurted by someone else's actions. Or even if we do not get hurt, there's like, we sometimes get disturbed over someone says something with maybe unintentionally or intentionally, we get hurt over it or we get disturbed over it and we want to tell it to someone, we want to rant it out, it bothers us. और दूसरों के actions, obviously आपके दोस्त हैं, आपके parents, the people that are important to you, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं that you do not like or you would feel hurt because of them. Obviously you are living with the people and you love them so much, so obviously them doing something could hurt you without, maybe unintentionally, without them knowing, lekin that's cause you love them so much that they do something and it affects you. So it's not about that you hate that person. You can get hurted and disturbed by someone's action if you love them so much or if they're so important to you in your life that you never expected this coming out of this person. Or when you are in that situation, when you feel vulnerable and when you feel all these emotion coming in, you feel disturbed, so you want to share it with someone, you want to rant it out, you want to vent it out to someone. आपका दिल चाहता है कि आप बोलो, आप एक्सप्रेस करो, और कभी कभी ये होता है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस इंसान को सीधा जाके वो चीज़ बोल सको, उसको कन्फ्रंट कर सको कि ओ दिस वाज द थिंग. कन्फ्रंट भी नहीं, आई थिंक कन्फ्रंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. या उसको आप बता सको डायरेक्टली कि दिस वाज द थिंग दैट हर्टेड मी. आपको कभी कभी होता है कि आई कैन नॉट टेल इट टू डायरेक्टली टू दैट पर्सन फॉर मैनी रीजन्स. तो आपका दिल चाहता है आप किसी और को बताओ, क्योंकि अगर समटाइम्स व्हाट आल्सो हैपन्स इज़ दैट कि अगर आप उस इंसान को बता रहे हो कि यार मुझे तुम्हारी ये चीज़ हर्ट की थी, तो वो आगे से उस चीज़ को एक्नॉलेज ना करे, वो उस चीज़ को ना समझे और वो कहे कि नहीं आई डिडंट मेंट दैट, आई मेंट दैट.
एंड यूर लाइक कि ओके यू आर क्लियरिंग योर सेल्फ आउट, लेकिन इट कैन स्टिल हर्ट मी, तो आपका नहीं दिल चाहता उस इंसान को बताने का. कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ आपको किसी इंसान की हर्ट करती है, लेकिन यूर लाइक आई डू नॉट वॉन्ट टू टेल देम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ड्रामा हो या ये हो वो हो. और कभी कभी ये होता है कि आप इतने ज़्यादा इमोशंस में होते हो, तो आप उस इंसान के सामने वो चीज़ एक्सप्रेस उस तरह नहीं कर पाते, और आपका दिल चाहता है कि आप किसी और से उस चीज़ के बारे में बात करो. क्योंकि व्हेन आर यूर आप जब किसी इंसान के सामने खड़े हो, तो यू कैन नॉट से ऑल ऑफ दिस दैट यू फील, क्योंकि यू नो कि देयर आर सम थिंग्स दैट यू आर एग्जैजरेटिंग एंड इट वुड बी मीन टू से इट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन. और आपने कहना बहुत कुछ होता है, लेकिन आप उस इंसान के सामने वो सारी चीज़ें नहीं बोल सकते उसके बारे में, क्योंकि डीप डाउन यू नो कि इट्स नॉट द राइट थिंग टू से, आई कैन नॉट से इट. लेकिन आपको वेंट भी करना होता है, या इवन अगर आपको रैंट भी करना है, इट्स नॉट सम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूर यूजिंग और ये सब कुछ, या फिर कोई इल्ज़ाम नहीं आप उस इंसान पे लगा रहे, फिर भी आपको शर्म आती है कि नहीं यार मैं इस इंसान के सामने ये बात नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ उसको खुद रियलाइज़ हो जाए, मैं खुद क्यों बताऊँ, मुझे नहीं बताना. तो आपका मोस्टली जब आप किसी इंसान से हर्ट होते हो, तो आपका किसी और इंसान को वो चीज़ बताने का दिल चाहता है. और जब आप देखते हो कि दिस पर्सन डिड समथिंग दैट अफेक्टेड मी सो मच, लेकिन दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे आर हैविंग फन, और आई एम अफेक्टेड बाय इट, तो मैं कैसे जाके इससे कम्युनिकेट करूँ कि यार मुझे ये चीज़ बुरी लगी है. और वो अगर से अपोलोजाइज भी ना करे ना करे, तो आई डू नॉट वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन राइट नाउ. वाइल आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, नॉट रोमांटिकली, लेकिन अगर कोई इंसान की आपकी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू है और उसने कोई ऐसी चीज़ की है और आप चाहते हैं, आप उससे हर्ट हो गए हैं, और लेकिन यू स्टिल वांट टू हैव देम एज अ फ्रेंड और योर सिबलिंग और जो भी है, लेकिन ऑल्सो दैट थिंग हर्ट्स you, तो obviously it is important to communicate that with them and make them understand, and it's their duty to understand it and apologize to you or understand you or मतलब try to do better. लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ पे फ़ौरन रिएक्ट करना या फ़ौरन उस इंसान को बताना इज़ ऑल्सो, इन माई ओपिनियन, इज़ ऑल्सो नॉट राइट. मुझे लगता है कि जब वो चीज़ होती है तो वी आर ऑन द टॉप ऑफ आवर इमोशंस, और हमें लगता है कि हम ही सही हैं, उनकी गलती है, उसने ये किया वो किया, तब आप बहुत भरे पड़े होते हो. लेकिन आफ्टर अ वाइल व्हेन यू प्रोसेस दोज फीलिंग्स, तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो नीचे आ जाती हैं और आप उस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली देख लेते हो. तो मुझे हमेशा लगता है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होनी हो और आपको किसी से कम्युनिकेट करना हो, तो आप थोड़े अरसे बात किया करो, जब आप पूरे उस इमोशन को प्रोसेस कर लो. नॉट व्हेन यू आर हाई ऑन सर्टेन इमोशंस, जब आप खुशी में बहुत ज़्यादा होते हो, व्हेन यू आर लाइक फुल ऑफ हैप्पीनेस, तब आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो और उसके बाद आप कहते हो ओ माय गॉड मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, आई वाज ओवर एक्साइटेड. इसी तरह when you're very sad or you're sobbing and you feel कि सब गलत है, मैं ठीक हूँ सिर्फ, it takes a while कि आप उस इमोशन से उतर आते हो और आप नॉर्मल जब सरफेस पे चले जाते हो तो यू कैन सी थिंग्स डिफरेंटली. और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं एक दिन एक इमोशन को इतना ज़्यादा फील करती हूँ और जब मैं अगले दिन होती हूँ तो मैं कहती हूँ आई एम ओवर बाय इट, मैं ज़्यादा रिएक्ट कर गई, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, या मेरी गलती यहाँ थी. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. आई नो कि इट्स हार्ड टू प्रोसेस थ्रू इमोशंस, इट्स वेरी हार्ड टू गो थ्रू इट. अगर स्पेशली व्हेन यूर हर्ट फ्रॉम समवन एंड यूर सोबिंग, यू वांट टू टेल इट टू समवन, आप शेयर करना चाहते हो, बेशक उसी इंसान से, बेशक किसी और इंसान से. लेकिन आई थिंक and it's very hard to go through all of this alone. लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा खुद प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि you do not know कि आप जज्बाती में आके क्या क्या चीज़ें बोल दो, right? My topic is not about that. My topic is about that कि you share it with your friends. And this is something that I realized about me, कि I have stopped sharing my feelings or whenever I feel hurt or vulnerable with my friends, with my in real life friends. I have stopped sharing it at all. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ, again, you process through it and you are over by it in 2 days, 3 days. लेकिन अगला इंसान जिसको आप शेयर कर रहे हैं, they would not forget about it. Be it my parents, be it my friends. अगर मैं अपनी किसी एक दोस्त से हर्ट हूँ और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट शी डिड समथिंग दैट अफेक्टेड मी, और मैं किसी और दोस्त को अपनी जाके बता रही हूँ कि यार दीज वर द थिंग्स दैट शी डिड एंड इट रियली अफेक्टेड मी, आई एम वेरी सैड, और वो दोस्त आपको कि ओके शी डोंट डिजर्व, यू डोंट हैंग आउट विद हर एनी मोर,
लेकिन यू आर, और आप उस वक्त अपने इतने टॉप ऑफ द इमोशंस थे कि आपने उस बात को ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे they were completely wrong and you're very hurt और ये वो, तो अगला बंदा बोलेगा कि यार if you're that hurt, that person does not deserves you. After 2-3 days you get over by it और आप थोड़ा सा, आपका गुस्सा कम हो जाता है, अगला बंदा आपको रीच आउट कर लेता है, आपका उससे ख़त्म हो जाता है, या you do not feel hurt anymore और आप कहते हैं कि नहीं मेरी तो वैसी की वैसी दोस्ती है, तो you start hanging out with them again, या आपकी उनकी फिर से बात हो जाती है, and everything solves, you guys are back for being friends and it's okay and it's fine and you guys have moved on. लेकिन द पर्सन जिससे आपने सारी बात शेयर की थी, दे वॉन्ट फॉरगेट इट, they'll feel bad कि मुझे तुमने आके इस इंसान की इतनी बुराइयाँ की हैं और अब तुम जाके इस इंसान के साथ हैंग आउट कर रही हो, और they'll feel bad कि why did you come up and like ranted me at first place, did you used me, कि अब तुम जाके उसके साथ फिर रही हो और अब सब कुछ ठीक हो गया है. तो इस वजह से there are so many things that bother me कभी कभी, लेकिन आई कुड नॉट शेयर इट विद माई फ्रेंड्स क्योंकि मुझे पता है, और स्पेशली अगर मेरे कोई दोस्त के साथ हुआ है तो आई समटाइम्स डू नॉट शेयर इट विद माई पेरेंट्स, क्योंकि माई पेरेंट्स वुड बी लाइक कि मतलब यू आर सो हर्ट बाय दैट फ्रेंड एंड नाउ यू आर हैंगिंग आउट विद दैट. दैट्स व्हाट ह्यूमन इमोशन इज़, कि हम एक चीज़ को इतना फील करते हैं लेकिन उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को प्रोसेस कर लेते हैं. जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हम फैसला करते हैं कि मैंने अब इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी. थोड़ा थोड़ा जब आप उतर जाता है, और स्पेशली व्हेन यू टॉक द थिंग्स आउट विद दैट पर्सन, तो यू आर फाइन एंड इट्स ओके टू रिकनसाइल, इट्स ओके टू गेट बैक टू दैट पर्सन. लेकिन यू हैव टू सी कि आप किस रेंज में अगले बंदे को वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं. और इस वजह से इवन दो आई एम वेरी लाइक, मैं हमेशा जब भी किसी चीज़ से हर्ट होती हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉर माई मिस्टेक कि ओ व्हाट आई डिड, क्या मैंने ऐसा कुछ किया था, क्या आई डिड कि आई डिज़र्व्ड इट, मैंने क्या किया था. और मैं पिछले 2-3 सालों से अपनी गलतियों के बारे में बहुत कंसिडरेट हो, क्योंकि वेयर आई वॉज रॉन्ग, मुझे बताओ वेयर आई वॉज रॉन्ग, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई वॉन्ट टू डू दिस. तो इस वजह से, लेकिन फिर भी आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि आई हैव बिकम सो प्रोटेक्टिव अबाउट दैट वन पर्सन कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी और को बताऊँगी तो दे विल हेट दैट पर्सन, और मुझे पता है कि मैं 2 दिन बाद उस इंसान के साथ फिर से फ्रेंड्स हो जाऊंगी, बट दे विल कीप हेटिंग दैट पर्सन एंड दे विल कॉल मी डम्प कि तुमने आके मुझसे इतनी उसकी बुराई की है और अब तुम उसके साथ हो. पीपल, आई वेंट थ्रू दैट इमोशन, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं उस 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 4 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, कि आई विल गेट ओवर बाय इट. और वो अगला इंसान आके मुझसे सिंसियर डिस्कशन करेगा इफ़ समथिंग नॉट मेजर हैपेंड, इफ़ इट्स अ स्मॉल टाइनी इशू, वो मुझसे आके बात करेगा, मैं उससे बात करूँगी अगर, और करेगी और मैं उससे करूँगी. आई एम यूजिंग प्रोनाउंस रैंडमली, लाइक सीरियसली. तो जो है it would be fine and I'll be fine, लेकिन the person who I shared with again would be like why would you come up and then rant to me, like was my advice nothing to you. तो इस वजह से first of all we have, मुझे लगता है कि I have become very mindful कि मैं किसी चीज़ को शेयर ना करूं. हालांकि मुझे उस वक्त इतनी वो चीज़ बॉदर कर रही होती है, आई वॉन्ट टू टेल इट टू समवन, आई वॉन्ट टू क्राई, आई वॉन्ट टू सोब, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो भी कहूँगी ना उसकी वजह से जिस इंसान के बारे में मैं कह रही हूँ ना उसका एक इमेज बन जाएगा उस इंसान के सामने, एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट इमेज टू बी रूइंड, क्योंकि they are still important to you and you will forget about it in 2 days, in 3 days. Now I see both sides. I see उस बंदे का भी साइड जो हर्ट हुआ है, एंड आई सी उस बंदे का भी साइड जो उसकी रैंट सुन रहा है और फिर अपने ही दोस्त को देख रहा है कि इसने मेरी एडवाइस को नहीं माना और वो अपने दोस्त के साथ अब फिर रही है या अपनी दोस्त के साथ अब फिर रही है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि दोनों साइड से देयर इज़ थिंग्स दैट वी कैन डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, ताकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा सिक्योर बना सकें, सर्कल बना सकें कि इट्स आर सेफ प्लेस टू से समथिंग, इवन व्हेन पीपल स्पेशली गर्ल्स आर इन अ रिलेशनशिप. तो वो, और देयर समथिंग दैट इज़ डिस्टर्बिंग देम अबाउट द पर्सन दे आर इन देयर रिलेशनशिप विद, वो कभी कभी आके अपनी बेस्ट फ्रेंड से वो बात नहीं कर सकती. और हालांकि your best friend should be the first and your comfort place to come and rant about thing, लेकिन उनको पता है कि वो नहीं कर सकती क्योंकि वो कहेंगी तो everyone will like ओ बस छोड़ दो, फिर उसे ना करो. और
फॉर यू इट्स नॉट दैट ईजी कि मैं बस छोड़ दूँ और मैं ना करूँ. मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं बहुत लोगों के बोलूँ कि हाँ तो फिर तुम छोड़ दो ना, मुझे पता है, लेकिन मैंने ऐसा कहा तो अगला बंदा मुझसे बात करना छोड़ देगा. एंड इफ समवन इज सीकिंग देयर कंफर्ट इन मी बाय शेयरिंग देयर स्टफ विद मी, तो आई कैन नॉट जस्ट से इट एंड गेट अवे विद इट. और मुझे पता है कि वो अगला बंदा कभी मुझसे वो चीज़ शेयर नहीं करेगा कि शी डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, शी डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग, और आई एम गोइंग थ्रू दिस टफ टाइम एंड आई कांट डू इट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस बंदे, मुझे लगता है कि विद रिलेशनशिप I'll make a whole different episode on that, लेकिन it's very difficult to tackle. और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि if your friend is in a toxic relationship and you can see it, लेकिन you know कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरी friendship ख़त्म हो जाएगी, तो do not end your friendship. Your friend needs you. She'll be over by that person when it will be time. आप उसको जितनी बार मर्जी समझा लो वो नहीं मानेगी, वो अपनी दोस्ती आपसे ख़त्म कर देगी, लेकिन वो उस बंदे को नहीं छोड़ेगी. और दैट्स द थिंग. तो इस वजह से आपको इस तरह अगले इंसान को हैंडल करना है. और मैं रिलेशनशिप वाले में पूरा, मुझे लगता है दैट्स अ होल डिफरेंट पॉडकास्ट, डिफरेंट एपिसोड. लेकिन आपको एक इंसान को ऐसे हैंडल करना है कि उसको आपसे बात करके अच्छा भी लगे, उसको आप उसके कंफर्ट पर्सन भी रहो, और जो है उसको डर ना लगे कि ओ मैंने ये कर दिया, अब ये बंदा क्या कहेगा, और दे स्टार्ट अवॉइडिंग यू, हाइडिंग यू फ्रॉम देयर स्टोरीज कि ये बंदा ना देख ले ये क्या किया. और अगले बंदे की भी हिसाब से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो I'll talk about the both point of views, and ताकि we could be better person and better friends, and we could create a better space for each other जहाँ पे हम एक दूसरे से rant कर सकें. So the first point of view is the person who got hurt and wants to share that from your friend. Now सबसे पहली बात तो ये है कि you need to, I believe in that, कि you need to process that emotion that you're feeling, the hurt you're feeling by yourself alone before you reach out to someone to talk to it. यहाँ मुझे लगता है कि it always worked out for me because it always avoids drama. आप जितना जल्दी जाके किसी को अप्रोच करके अपना सारा वो निकाल दोगे और आपको नहीं पता, और you are not sure about that person, और specifically if दो आपके अलग अलग दोस्त हैं, तो आप अपनी एक दोस्त की बुराई जाके किसी और दोस्त से करना, मुझे लगता है कि इट्स नॉट द वाइजेस्ट थिंग टू डू. आप कर सकते हो, ये नहीं, बुराई नहीं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट. पहले यू नीड टू थिंक कि क्या हुआ था, उसने क्या किया, किस बंदे ने, उसकी इंटेंशंस क्या थी, डिड दे ऑलवेज हेटेड मी, वॉज आई नेवर इम्पॉर्टेंट टू देम, वॉज इट इंटेंशनल, वॉज इट अनइंटेंशनल, मेरी गलती क्या थी, कहीं पे मैंने गलत चीज़ तो नहीं बोल दी, या मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कौन सी होगी. यू हैव टू थिंक थ्रू इट बिफोर टेलिंग समथिंग टू समवन. आपके इंस्टेंट इमोशंस कुछ होते हैं, देयर इज ऑलवेज लेयर्स टू इट. इंस्टेंटली आप कुछ और सोचते हो, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचते हो, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचते हो. तो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड यू नीड टू रिकॉल व्हाट्स हैपेंड. क्योंकि आप अगर एक इंसान से फ़ौरन जाके कुछ बोल रहे हो, आप सिर्फ उसको अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हो, और वो इंसान वही सुनेगा जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो दूसरी साइड से नहीं सुनेगा. तो इस वजह से मुझे लगता है कि it's probably the person you got hurt from, you really love that person, और there is a solid chance कि आप उस चीज़ से निकल आओगे अगर आप उस चीज़ को अभी प्रोसेस कर लो, और आपकी शायद उससे रिलेशनशिप फिर से वैसे फिक्स हो जाए. अगर आप फ़ौरन जाके अपने दोस्त को बता दोगे तो आपको नहीं पता है आगे और केओस होंगे, वो जाके किसी और को बता देगा, वो जाके उसको बता देगा, लड़ाई और बढ़ेगी. तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले वो चीज़ खुद प्रोसेस करो. आपकी दोस्त ने आपको कुछ कहा है जो आपको नहीं अच्छा लगा, पहले उस चीज़ को खुद प्रोसेस करो कि मुझे क्या करना है, और इसने क्या बोला है, इसने इंटेंशनली बोला है, अनइंटेंशनली बोला है, इसने मुझे पहली बार ऐसा बोला है कि ये मुझे ऐसा बोलती रहती है, क्या ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसकी बात जो है वो सोचूं, और मतलब इससे मैं इस बात पर रिकंसाइल करना चाहूँ, या फिर मैंने अब इसके बाद इससे दोस्ती रखनी ही नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट. और मैंने वो अपनी अपोलोजाइजिंग की एपिसोड में भी डिफरेंट सिनेरियोज बताए थे कि किस सिनेरियो में यू शुड एक्सेप्ट अ अपॉलोजी और यू शुड अपोलोजाइज, और किस सिनेरियो में यू मे बी शुडंट. तो इस वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट यू नीड टू थिंक थ्रू दैट
कि where I stand and where that person stands for me, and what they said, is it intentional or unintentional? Did they said it for the first time, or they keep making these mistakes and I am really mad at them? ठीक है, सबसे पहले you have to process through that. Secondly, you are picking a friend जिससे मैं ये बात कर सकती हूँ, और फिर आपको देखना है कि इज़ इट द फ्रेंड जो आके अपनी भी बातें मुझसे शेयर करती है. वी हैव दैट रिलेशन गोइंग ऑन. फॉर मी, मैं हमेशा ज़्यादा जो है वो, मुझे हमेशा ज़्यादा रैंट करना होता है, तो मोस्टली आई जस्ट रैंट ऑन ट्विटर इन माई क्लोज फ्रेंड्स एंड दे डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग, एंड आई लाइक दैट. मतलब आई sometimes I just need to type it out and tell it to someone or rant it, लेकिन I don't want anyone to ask me कि what happened. तो most of the time ये होता है. तो इस वजह से I like Twitter, क्योंकि I just can type shit. No one most of the time asks me कि what happened. If someone does, I'm like, oh, I'm fine, it's fine. तो इस वजह से मुझे लगता है कि कभी कभी आपको सिर्फ वो चीज़ें अपने अंदर से निकालनी होती हैं. आपको एक्चुअली कोई जवाब नहीं चाहिए होता आगे से लोगों का, आपको कोई ओपिनियन, कोई मशवरा, कोई कुछ नहीं चाहिए होता, आपको बस अपने अंदर से वो चीज़ें निकालनी होती हैं. फिर मुझे लगता है कि देयर इज़ दिस वन ऑनलाइन फ्रेंड ऑफ माइन who is like my ride or die friend, or we have been friends for so long, and she is someone ke I have mentioned her so many times in my podcast, lekin she is someone ke I can tell my anything and everything to her. First of all, मुझे लगता है कि with online friends it's that के they do not have anything to do for you. The bond you share with them is very just pure and genuine. मैंने कभी ऑनलाइन लड़कों से दोस्ती करके ट्राई नहीं की, और नीदर डू आई फील सेफ enough to tell a guy what I feel or whatever emotion I'm going through. अगर मैं किसी लड़की से hurt हुई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि guy is the best person I should approach and tell कि I'm hurt. लेकिन with my online friendship with girls, it always starts like कि we are fangirling over same show, और अब हम उस show और उस actor को भूल गए and now we are just best friends. It happens rarely, लेकिन it is, and she's someone के I just rant it out, और मैं पिछले 3 सालों से whatever happens I just tell her and she gives me the most sincere and genuine advice ever. The thing that is good about her is that कि जब भी मैं अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रही होती हूँ, she don't know my friends, मतलब personally she don't know anything about them, but she always tried to see their side too, or she always tells me कि oh, you could be wrong for that, you could be wrong for that. तो I like those people who tell me कि where I can be wrong, instead of कि मुझे भड़काएं कि हाँ ये तो ऐसा ही है, आइंदा तुमने बात नहीं करनी, इससे आइंदा करना नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इंसान के पास जाएं जो आपको पता है कि आगे से जेन्युइन मशवरा देगा. उस इंसान के पास ना जाएं जो आगे से आपको और भड़काएगा, आपके इमोशंस को और ऊपर कराएगा कि आपको और गुस्सा चढ़े, और ऐसे लोग होते हैं. तो इस वजह से यू आर शेयरिंग योर vulnerability with someone, or you have to see कि आप किससे करें. I have seen a lot of people in university जो उनके सामने आते हैं ना, वो उसके सामने बोल देते हैं कि इसने मुझे ये कहा. It never turns out in their favor. It will make more drama, and we do not want more drama. We do not want more anxiety. We do not want all of that. ठीक है, तो इस वजह से we have to be very careful कि हम किससे क्या बात शेयर करें. For me, I know कि oh, my mom is my comfort place, so I can come and tell her कि this happened, and I know कि she'll like give her genuine advice. Or my online friend जिसको मुझे पता है कि I'll tell her, तो she'll see both sides and she'll tell me कि रबिया, you were wrong over there, तो you should not have done that. तो I feel comfortable in that. And इस वजह से मुझे लगता है कि अगर आपका कोई और दोस्त है, या आपका सिबलिंग, या आपकी बहन है, जो आपको पता है कि इतना ओवर प्रोटेक्टिव भी नहीं हो जाएगी, वो अगले इंसान को भी देखेगी और आपको वैसा मशवरा देगी, आपको उस इंसान के पास जाना चाहिए. और आपको उस इंसान के पास जाना चाहिए जो आपकी वजह से जो है वो ये ना कर दे कि हाँ बस तुम दोस्ती कैंसिल कर दो, तुम ये कर दो, वो कर दो. ऑब्वियसली इट इज़ गुड टू बी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट योर फ्रेंड, लेकिन कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि मैं हालांकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे भी स्विच किए जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी आप वो दोस्त हैं जिससे आपकी दोस्त आके वो बात शेयर कर रही है, तो आपको देखना पड़ता है कि वो जिस इंसान के बारे में बात करी है वो इस इंसान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था. और इस वजह से यू कैन नॉट ऑलवेज जस्ट से कि जस्ट
लाइक लीव देम, दे आर नॉट योर फ्रेंड, और ये कि आप उनके इमोशंस को ओवर ऊपर करो. You want them to feel better, you want them to feel better, so you should like listen to the whole thing, give your genuine opinion to them, ताकि वो इससे सही तरह कर सकें, क्योंकि nothing's gonna benefit you. Or to see your friend happy and to see them having a better life and their things to get sorted out should be the end goal of all of this. तो मुझे लगता है कि इफ़ यू गॉट हर्ट तो सबसे पहले प्रोसेस थ्रू दैट, गो विद द पर्सन, फॉर द पर्सन यू नो के विल एक तो वैलिडेट माई फीलिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली योर फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, योर फीलिंग्स शुड बी वैलिड. एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि कभी कभी आप किसी चीज़ पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी फीलिंग्स वैलिड नहीं है. कोई आपकी सिचुएशन में नहीं है तो वो नहीं जान सकता कि वो आपने कैसा फील किया. इस वजह से आप जो भी उस चीज़ के बारे में फील करो, इफ़ यूर हर्ट, इफ़ यूर क्राइंग, तो इट हर्टेड यू, इफ़ इट हर्टेड यू तो इट हर्टेड यू, एंड यू शुड गो टू द पर्सन हु शुड वैलिडेट इट. ये नहीं है कि टू ब्रश इट ऑफ एंड से कि यू वर रॉन्ग. दे शुड वैलिडेट यू एंड दे शुड टेल यू कि आई नो this is how you feel, but maybe this was the part where you could be wrong, yeah, maybe it was not intentional for them. So you need to go to a wise friend जो सॉफ्ट हो, जो आपकी पूरी बात सुने, आपको अच्छे से मशवरा दे. अगर एक दोस्त आपकी बात सुन के आपको आगे से भड़का रहा है उस अगले इंसान के खिलाफ मज़ीद, तो मुझे नहीं लगता कि दैट्स द बेस्ट थिंग एवर, और आई डोंट थिंक कि दैट, मुझे ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए. और मोस्टली मैं अपनी बात इसीलिए किसी को नहीं बताती, और मेरा नहीं दिल चाहता कि अगर मुझे कोई चीज़ बॉदर करी है तो मैं उस इंसान को बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस इंसान ने मुझे उस इंसान के खिलाफ और भड़काना है. हो सकता है कि मैं कल हर्ट ना हूँ, परसों हर्ट ना हूँ, मैं उस इंसान के वापस चली जाऊँ, और जो इंसान से मैं बात की होगी वो कहेंगी कि व्हाट द वाई, ओ आई यूज्ड अ कर्स वर्ड, सॉरी आई विल बीप इट, कि वाई डिड यू गो बैक टू दैट पर्सन. क्योंकि at the first place they sometimes just don't want you to not be the friend with that person. तो इस वजह से इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप किस इंसान के पास जा रहे हैं और किस इंसान से बात शेयर कर रहे हैं. फॉर मी, मुझे आई हैव ऑलवेज फेल्ट सो नाइस कि हालांकि मैं जब चीज़ कोई, मैं बहुत दुखी होती हूँ और मैं चीज़ प्रोसेस कर रही होती हूँ, मेरा इतना दिल चाहता है मैं शेयर करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं उस वक्त आई होल्ड माई सेल्फ और मैं किसी को नहीं बताती. और 2 दिन बाद मैं कहती हूँ कि शुक्र है मैंने किसी को नहीं बताया, मतलब आई एम फाइन नाउ, आई एम ओवर बाय इट, इट्स ओके. मैंने ट्विटर पर रैंट कर दिया, ठीक है. मैंने अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को बता दिया, शी कम्फर्टेड मी. शुक्र है कि मैंने किसी इन रियल लाइफ को नहीं बताया, क्योंकि मैं भूल गई हूँ, लेकिन उस अगले बंदे के स्टक रहनी थी ये बात कि ओ तुम अब उसी दोस्त के साथ फिर रही हो जिसकी तुम बुराई कर रही थी. तो इस वजह से मुझे लगता है कि आई हैव ऑलवेज लाइक let myself process through it, or I have never regretted not telling someone something. लेकिन मैं जब भी किसी को बताती हूँ, जब भी आई एम हाई ऑन माई इमोशंस एंड आई लाइक रैंट इट आउट टू समवन, और मैं ये सब कुछ बोल देती हूँ, और अगले टाइम मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है. तो staying silent when you're high on your emotions would never regret, and you will thank yourself later on. The other thing is that कि आप एक इंसान से हर्ट हुए हो पहली बार, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी की सारे सीक्रेट्स जो उसने आपसे शेयर किए थे, उसकी सारी चीज़ें आप जाके किसी और को बता दो और अपने गुस्से में, और को ओ मैं गुस्से में हूँ तो ये मैं वो डिज़र्व करती है कि मैं उसके साथ ये करूँ. जो बात हुई और जिस बात से आप हर्ट हुए हो, सिर्फ उसके बारे में बात करो. यू शुड नॉट कैरेक्टर असैसिनेट और नेम कॉल, और फिर ऐसी कोई चीज़ करो जिससे इट फील्स बैड और अगले बंदे से आपकी और लड़ाई हो जाए. कि अगर आप अपने उस दोस्त से वो चीज़ शेयर भी कर रहे हो तो आप सिर्फ ये बता रहे हो कि हाँ दिस वॉज द थिंग दैट हर्टेड मी. आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि अगला बंदा फिर अगर आपके उस दोस्त को जाके आपकी बात बताए तो आपकी और लड़ाई हो जाए. तो दिस इज़ द लेसन दैट आई लर्नड व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, कि अगर मैं अपनी किसी दोस्त से हर्ट भी हूँ तो मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं किसी और दोस्त से जाके उस इंसान की बुराई करूँ. हाँ, और देयर इज़ अ डिफरेंस, यू कैन टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हर्टेड यू विदाउट लाइक उसकी बुराई करने, और विदाउट, क्या मेरे से सेंटेंस नहीं बन रहा, आप भी बात कर सकते हो कि हाँ मेरा दिल दुख है, और आप उसकी बुराई उसमें नहीं कर सकते. मतलब ऐसा है पॉसिबल. यू कैन टेल देम कि देयर एक्शन हर्टेड मी विदाउट करेक्टर असैसिनेटिंग देम और टेलिंग देम कि हाँ वो तो ऐसे ही हैं, या फिर उनकी कोई बुराई करने की बजाय. मतलब मुझे लगता है कि दैट्स वेरी पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल,
your friend did something without you, you're hurt about that. लेकिन डज दैट मीन कि आप अगले बंदे को बताओ कि हाँ वो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो तो ये करती है, वो तो वो करती है, उनके सारे सीक्रेट बता दो और उनसे एकदम से नफरत करना शुरू हो जाओ. यू विल बी ओवर, मतलब यू शुड नॉट हेट समवन इतनी जल्दी एंड स्प्रेड हेट फॉर देम आगे भी without processing through the whole thing. Like, that does not give you the license to be hateful, to spread hate against them without knowing anything. और जो टॉपिक है आपको चाहिए कि आप ऑब्वियसली जब आप अपने इमोशंस पे हाई होते हो अगेन, तब आपको अगली पिछली सारी बातें याद आ रही होती हैं. एंड अगेन जब आप उस चीज़ को प्रोसेस कर लेते हो तो आप कहते हो कि यार मैं पागल थी, मैं क्यों ऐसे सोच रही थी, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए. तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू कैन लाइक टेल समवन दैट यू आर हर्ट विदाउट स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट दैट पर्सन, के वो आप उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो कि अगर उसको पता लग गई तो वो आइंदा आपसे दोस्ती ना करे. आप अगले इंसान से उतनी ही बात करो जो आप जिस बंदे से आप हर्ट हुए हो उसके आप मुंह पे भी कह सको कि आपने उस, क्योंकि आपने अगले इंसान को वो बात की, लेकिन आप उतनी ही बात करो जो आप अगले इंसान के, अगर उसको पता लग गई तो यू कैन स्टैंड बाय दैट कि या आई सेड दैट एंड आई फील दैट. इस वजह से यू नीड टू बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कंसिडरेट व्हेन यू आर टेलिंग द थिंग्स दैट मेड यू फील सैड. क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले गए और आपकी बात इधर की उधर हो गई तो इट वुड कॉज मोर केओस. तो इस वजह से यू कैन से कि आई एम हर्टेड बाय दिस, मुझे ये एक्शन बुरा लगा, मे बी ये हो गया, मे बी वो हो गया, शायद मेरी तरफ से कोई गलती हो गई, लेकिन दैट मेड मी रियली सैड, इट वॉज वेरी ऑफेंसिव टू मी. क्योंकि यहाँ इस पूरी स्टेटमेंट में यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर इमोशन, हाउ यू फील अबाउट इट. यू आर नॉट सेइंग कि हाँ वो तो बंदा है ही ऐसा या बंदी है ही ऐसी, उस वो ये काम करती है, वो इस लायक ही नहीं है, उसका ये है, उसके फैमिली सीक्रेट्स ये हैं, उसका ये, और आप सब कुछ उसका कट्ठा छट्टा खोल दो. दैट्स वेरी बैड. तो अगर आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली एंड हाउ देयर एक्शन हर्टेड यू इंस्टेड ऑफ talking about them or hating them, right? I hope this makes sense. तो इस वजह से here are the 3 steps you need to do if you want to share something with someone. First of all, I think कि sometimes we just need to rant it out. तो आपको you have to see कि if you want some advice or you just want to rant it out, you need to do it with someone who you know कि would listen you, validate your feelings, but at the same time वो आपको ज़्यादा भड़काएंगे नहीं कि हाँ ये कर लो. मतलब you guys understand what I'm trying to say. You want to be heard, you want to be listened, you want someone to calm you down without filling you with more hate. और दूसरा ये है कि when you are telling what hurted you, तो you need to focus on your emotions and how you get hurted instead of spreading more hate towards that person. और thirdly, बल्कि firstly, you need to process all of this, क्योंकि when you are extremely sad or extremely happy, you tend to do or say something that you really don't mean, but you're doing it in the rush of your emotions. So it's very important for you to process through that. समटाइम्स आप उस चीज़ से गुजर जाते हो और फिर आप कहते हो कि अच्छा इट्स डजेंट हर्ट मी एनी मोर, इट डजेंट हर्ट द सेम वे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज़ में ऐसा ना कुछ करें कि हम बाद में जाकर रिग्रेट करें उस चीज़ पे. डू नॉट पोस्ट एन इंस्टाग्राम स्टोरी. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट हर्ट एंड देन दे पुट ऑन अ व्हाट्सएप स्टेटस अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए, या फिर वो जो है कोई इंस्टाग्राम स्टोरी लगा लेते हैं. एंड इट्स जस्ट नॉट गुड, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं. दे लाइक laugh on it, they'll take a screenshot and you will be over by it. ट्रस्ट मी, you will be over by it. लेकिन वो इंसान नहीं भूलेगा जिससे आपने शेयर किया हुआ है. तो प्लीज़ अपने पब्लिक या प्राइवेट अकाउंट जिस पे आपके लोग हैं जो जिनसे आपका रोज़ का इंटरेक्शन है या मिलना जुलना है और वो आपको जानते हैं, उनसे वो चीज़ें मत शेयर करें. खज it's not the best thing ever. Twitter is a different place, or you can share it on your Reddit. क्योंकि Reddit पे भी it's like sharing your things on Reddit. Twitter is the same. तो वहाँ पे लोग आपको जानते नहीं है, they have nothing to do with you, तो the things that are coming out of them are unaffected or they can cause no harm to you. But at the same time, even if you're sharing on these platforms, make sure कि आप किसी अगले इंसान को character assassinate ना करें और बिला वजह उसके बारे में hateful comments ना करें. तो yeah, that's the thing. और again, it depends on that person कि अगर आप you are done with that person, तो फिर तो
आप अगर उससे आगे मतलब कि अगर वो इंसान रिपीटेडली वो चीज़ कर रहे हैं एंड यू हेट देम सो मच, यू डोंट वांट टू रिकनसाइल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन अगर कोई आपके बहुत दिल के करीब है, और आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट द पर्सन दैट आर like special to you, important to you, you value them, but still there's something that hurts them. It's sometimes also it's very important कि अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको वैल्यू बैक करता है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स हाउ फ्रेंडशिप वर्क्स. अगर आप किसी इंसान को वैल्यू करते हैं तो वो भी इंसान को वैल्यू करता है. डोंट देन शेयर देम कि दिस थिंग हर्टेड मी, क्यों. और मुझे लगता है कि इट्स द बेस्ट थिंग कि आप उस फीलिंग को प्रोसेस करके उसी इंसान से करो कि ये चीज़ थी जो मुझे बुरी लग गई, और वो आगे से कहे कि नो आई डू नॉट मेंट दैट. और अगर वो आपका अच्छा दोस्त हुआ तो दे विल ऑल्सो लाइक डील इट विद द सेम वे विदाउट ओवर रिएक्टिंग ऑन इट, और वो आपकी फीलिंग्स को कंसिडर करेंगे. तो इस वजह से अगर आपको लगता है कि it was you being more emotional and you do not want to share that with that person, or you can continue your friendship without sharing that with that person, और आप सही हो सकते हैं. और अगर आप बल्कि वो बात लाओगे तो और मुश्किल होगी, एंड यू आर ओवर बाय इट, यू डोंट वांट टू शेयर विद दैट पर्सन एनी मोर, तो सही है. लेकिन अगर आपको लगता है कि दैट थिंग इज स्टिल स्टैंडर्ड बिटवीन यू एंड यू वांट योर ओल्ड फ्रेंडशिप बैक, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को जस्ट टॉक आउट about the things and you'll be fine. I hope so, inshallah. So that's the point of view from that person who got hurt. Now if you are that friend जिससे आके आपका दोस्त अपनी बात कर रहा है, तो first of all you need to realize कि I am important to that person and I provide that person some sort of comfort, या फिर कुछ ऐसे कि that person is choosing me to share their इमोशंस और फीलिंग्स. अगर वो हर किसी से जाके बात कर रहे हैं देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, फिर आपको उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो पूरे ग्रुप में से आपको चूज़ करे तो यू नीड टू रियलाइज़ कि मेरे में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ ऐसा मशवरा दूँ कि इस इंसान को और बुरा फील ना हो, इसको अच्छा फील हो, और वो अगली बार भी मुझसे आके अपनी बात कर सके, और मैं उसको वो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकूँ, और जिस तरह जो सोच के मेरे पास आ रही है मैं उसको वैसा ही ओपिनियन दे सकूँ. ठीक है. सबसे पहले तो है कि आपको जो है वो इतना हेट फील करने की ज़रूरत, इवन इफ़ यू हेट दैट पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रही है, यू नीड टू सी कि आपके फ्रेंड के अंदर उस इंसान की क्या वैल्यू है, इफ़ दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड इफ़ यू नो कि शायद मैं ऐसी कोई बात करूँ तो मेरी उस इंसान से दोस्ती ख़त्म हो जाए, तो मे बी जस्ट चूज़ द राइट वर्ड्स हाउ यू से इट एंड मेक देम अंडरस्टैंड सॉफ्टली एंड नॉट हार्शली. दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है, दैट हैपन टू मी टू, कि मेरे दोस्तों की लड़ाई होती थी और इट वाज अ रिपीटेड प्रोसेस कि हर हफ्ते लड़ाई हो रही है, वो आके एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, और फिर अगले दिन वो फिर से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती थी. एंड इट मेक्स यू फील स्टूपिड कि तुम लोग जब भी लड़ाई करके मुझे आके यूज़ करोगे तो तुम लोगों को लगता है कर लोगे, और कल को फिर तुम लोगों की दोस्ती हो जाएगी, एंड दैट्स वेरी फेयर, यू शुड बी पिस्ड ऑन दैट. तो अगर कोई ऐसी दोस्त है आपकी जो हमेशा उस इंसान से लड़के आके आपके पास आप अपना ट्रॉमा डंप आप पे कर देती है और फिर कल जाके फिर से फ्रेंड्स हो जाती है, तो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट फ्रेंड्स. लोगों की बातें सुनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लोगों का इमोशनल बैगेज उठाना इज़ डिफ़िकल्ट. आप अपने आप हर इंसान के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकते. अगर आपको लग रहा है कि एक बार ठीक है हो जाती है चीज़, 2 बार हो जाती है, यू कैन टेल व्हेन समवन इज़ जेन्युइन एंड समवन इज़ नॉट. इफ़ योर फ्रेंड इज़ फाइटिंग विद दैट पर्सन एंड कमिंग बैक टू यू, और उस सब की इतनी बुराइयाँ उसको गंदा कर दिया आपके सामने, और फिर कल परसों उसी इंसान के साथ जाके फिर रही है, एंड यू आर बीइंग नाइस एंड सिविल, कि आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैंने उस इंसान को कुछ नहीं बताना क्योंकि और केओस हो जाएंगे, और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि तुमने किसी को नहीं बताना, लेकिन अब उसकी इतनी ज़्यादा बुराई करके वो फिर से उससे दोस्ती कर लेती है, तो देन लीव दैट फ्रेंड, गेट आउट ऑफ इट. अगर वो आए भी आपके पास तो डू नॉट लाइक गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस. लिटरली मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि देयर आर पीपल हु वुड कम अप टू यू ओनली व्हेन उनका कोई और इंसान से वो हर्ट होंगे, देन ओनली कम अप टू यू. देन जब उनका किसी और से फड्डा होगा तो वो आपके पास आ जाएंगे वो चीज़ शेयर करने, कि आप अब उनका जो है ना वो बातें सुने, उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको मोटिवेट करें और उनको मेक देम फील गुड. यू आर नॉट डूइंग दैट. ऑलवेज सी कि अगर मैं ऐसी कोई सिचुएशन से गुजर रही हूँ तो ये बंदा ऐसे करेगा,
और दूसरी बात ये है कि इफ़ योर फ्रेंडशिप इज़ ओनली बेस्ड ऑन दैट कि दे आर रिपीटेडली कमिंग फॉर यू टू जस्ट इमोशनली डंप ऑन यू, देन दे आर नॉट योर फ्रेंड, दे आर जस्ट यूजिंग यू फॉर दैट. तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर अपना मशवरा दे रहे हैं, इफ़ यू आर कम्फर्टिंग समवन और इफ़ यू आर गिविंग योर जेन्युइन एडवाइस टू समवन, तो आप किस इंसान को दे रहे हैं और आपके लिए उसकी क्या वैल्यू है, और वो मेरी एडवाइस सुन भी रही है कि नहीं. और अगर आपकी कोई जेन्युइन दोस्त है और आपने उसको एडवाइस दी और वो फिर से उसने उसका पैचअप कर लिया इवन दो दैट वाज अगेंस्ट योर एडवाइस, यू नीड टू गिव अ लिटिल बिट मार्जिन टू द अदर पर्सन टू, कि यार अगेन उसमें यही आता है कि आपको देखना पड़ेगा कि उस इंसान की इसके दिल में क्या वैल्यू है. अगर उसकी वैल्यू अच्छी है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं उस इंसान को, तो फिर इट्स मोर लाइकली कि वो उनसे पैचअप कर लेगा फिर से. और यू नीड टू बी हैप्पी फॉर देम, यू नीड टू सी बोथ साइड, स्पेशली इफ इट्स हर बेस्ट फ्रेंड और आपकी बहुत क्लोज दोस्त है हु नो के वेन एवर शी फील ट्रबल देन शी कैन कम टू यू. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फ्रेंड कि आप उनको बताएं कि ओ दिस इज वेयर यू कैन बी रॉन्ग, और आपको उस इंसान के लिए थोड़ा सा मतलब कि लेट इट ब्रश दिस टाइम, लेट इट स्लाइड दिस टाइम, या फिर इफ इट्स नॉट दैट बिग और मे बी यू have to like, or maybe you're overreacting, like, and say this in a nice way, क्योंकि other person is feeling vulnerable. तो you need to be very 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 careful कि आप उनको क्या कहें और क्या ना कहें, और ताकि वो आपकी बात आगे शेयर कर सकें. I do feel over the years I have seen my university friends के telling me something, क्योंकि अब I do not feel the urge कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता लगे तो मैं दूसरे को भी बताऊँ. तो आई रेस्पेक्ट दैट. सेकेंडली आई थिंक कि वी नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर. तो आई हैव बिकम अ गुड लिसनर और मैं अगले इंसान को पूरी तरह सुनती हूँ अपना मशवरा देने से पहले. कुछ लोग अपने मशवरे पे इतना होते हैं ना कि वो अगले बंदे की पूरी बात भी नहीं सुनते, और इस वजह से द अदर पर्सन रेजिस्ट देन टेलिंग समथिंग एल्स टू यू, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी जगह पे नहीं रखोगे अपने पाँव और आप अपनी तरफ से मशवरा दे दोगे. देन जस्ट लीव हिम, देन जस्ट break up with him, then just don't be friend with them. इतनी आसान चीज़ें नहीं होती. You have to be in that person's feet, in that person's shoes, feet, and see के how thing is and how you would have reacted. तो इस वजह से मुझे लगता है कि it is important to comfort your friend and make them feel safe. लेकिन अगर वो कहीं पे गलत है, you have to tell them in like a decent language कि maybe this is where you were wrong, तो like consider that too. Or if that person or your friend is repeatedly doing that, उसी से लड़ रहा है, फिर आपसे बुराई कर रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर कर रहा है, फिर कर रहा है, फिर कर रहा है, तो just like get out of that situation. Like you don't deserve it. ऐसा नहीं है. फ्रेंडशिप वैसे भी म्यूचुअल होती है. अगर आपको लगता है कि वो भी वही इंसान है जिससे आप अपनी करेंगे, तो it's a different, लेकिन you can tell the difference. You can tell someone when someone is genuine and really wants your advice, और ये या फिर ये कि वो बस उनको आप मिले हो तो वो आपसे कर है और इतना. और उसमें भी फ़र्क होता है एज आई सेड कि आपको किसी की जो है करेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए और उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए. आई हैव सीन पीपल जो उसके बेस्टीज़ होंगे, मतलब कि दे विल बी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. एक माइनर इनकन्वीनियंस हुई है और वो जो बंदी है वो आके अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड को इतना गंदा कर दिया हमारे सामने. दैट्स मतलब कि इट मीन्स कि योर फ्रेंडशिप वॉज नॉट जेन्युइन विद हर एट फर्स्ट प्लेस, कि आप उसके आगे इतनी बुराई मेरे सामने कर रहे हो और 2 दिन बाद इट्स फिक्स्ड एंड यू एक्सपेक्ट मी टू लाइक कीप दैट टू माई सेल्फ व्हेन यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट. तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट ना करें जो हमें यूज़ कर रहे हैं. आई होप कि दिस एपिसोड हेल्प्ड पीपल. आई होप के आई डोंट नो, लेकिन आई होप कि दिस हेल्प समवन. और फॉर मी, मैं पास्ट वीक में एक ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही थी. आई कैन नॉट एक्सप्लेन द सिचुएशन राइट नाउ क्योंकि आई एम स्टिल प्रोसेसिंग थ्रू इट. तो जब आई लाइक go through it completely, तो I like let you guys know कि what I learned from it and what happened. तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, तो मुझे I realized कि this is the thing and we should, as someone who shares and someone who is hearing, there are certain things that we should keep in mind. So I really wanted to talk about that. I hope I did justice with that. Make sure you guys are subscribing into the podcast. Make sure you are following me on Twitter and Instagram. I hope you guys are having a great fall, and I hope you guys are like eating what you want to eat, or I hope you guys are going for walks and
enjoying and reading and watching stuff, or just live this time to the fullest and have fun with your friends or have fun with the family, or yeah, make life like better for you. And I love you. I'll see you guys next week. It feels weird to record a podcast on phone, I guess. Like, and let me know how the audio was like. So maybe I'll like just record it on my laptop and the way I do it regularly. Like, yeah, bye.